morning, students. Now, today we are going to cover the topic of chapter 3, pair of linear equation in two variables, how we can solving these pair of linear equations. There are different methods are given there. So, algebraic method of solving a pair of linear equations. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ये मेथड कब काम में लेते हैं हम? When it is very difficult to point the point whose are in the form of coordinate like this root 3, 7 root 2, minus 1.75, 3.3, or they are in the form of fraction 4 by 13 and 1 by 90. So graphically it is not possible to plot these points in the graph. So there is every possibility of making mistake while reading such coordinates. So alternative methods are there to finding the solution of these equations. There are many algebraic methods are there, and one of them is substitution method. That means we have to given the linear equation in two variables, and we are finding the value of one of the variable from the one equation, expressing in terms of other, and substituting in the one of the equation, and we have to finding out the value of that variable. How it works? Look at with the help of example. Now we have to give an example is example 7. Solve the following pair of equations by substitution method. Now the first equation is given to us 7x minus 15y equals to 2. This is our equation number 1. Second equation is x plus 2y equals to 3. This is our equation number 2. Now it is very easy to find the value of x in terms of y from equation number 2. किस तरीके से हम इक्वेशन 2 लेते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x plus 2y equals to 3. So we are transferring this 2y, the positive quantity, to either side, it becomes negative. So the value of x is equals to 3 minus 2y. We are getting, this is the equation number 3rd. Now this value of x we have to substituting, किसमें substitute करेंगे, equation 1 में, किसमें substitute करेंगे. So what happened, the entire equation is to be converting into the form of variable y. This x को हम कहाँ put करेंगे, यहाँ पर put करेंगे इस जगह. So equation 1 becomes, after substituting the value of x equals to 3 minus 2y, step second, substitute the value of x in equation 1 we get. So clearly here it is 7x minus 15y. So here is this value of x is of the bracket हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 into 3 it is 21, and 7 into 2 करेंगे फिर माइनस साइन है, 14y minus 15y equals to 2. इन दोनों को जोड़ लेंगे हम. ये दोनों कैसी है, नेगेटिव क्वांटिटी है. minus 14 and minus 15 equals to minus 29y. This 21 we have to take into either side. इस 21 को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 21. देन माइनस 21 नेगेटिव का है, 2 प्लस का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वी आर गेटिंग माइनस 19. तो यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. And what about y equals to, this 29 is to be dividing here. So we are getting the value of y is equals to 19 upon 29, which is in the form of fraction. And clearly this 19 and 29 both are prime numbers. Now y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो क्या करेंगे,
तो हमने जो इक्वेशन 3 फाइंड आउट की थी, इक्वेशन 3 क्या थी? इक्वेशन 3 थी हमारे पास x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ पुट कर दिया 3 माइनस 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे ऐसे। तो ये पुट सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई दिस वन, तो कितना हो जाएगा ये? दिस वैल्यू इज, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका? 49। कैसे आएगा ये 49? देख लीजिए। सो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 3 माइनस 19 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 38 अपॉन 29। दिस इज अपॉन 1। नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इज योर 29 और 29 is dividing by 1, it is 29, then 29 is multiplied to 3। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3 इंटू, ऐसे मैंने लिख दिया 29 एंड माइनस ऑफ 38। देन व्हाट वी आर गेटिंग? 3 9 जा कितना हो जाएगा? 27। क्या कैरी हो जाएगा? 2 कैरी हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सो इट इज 87 एंड माइनस ऑफ 38 upon 29. Now simplify 17, 87 minus 38, here it is 7, 1 carry करेंगे 17, 17 minus 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 9। यहाँ कितना बचेगा? 7, 7 minus 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 and upon 29. So we are getting in this calculation it is 49 upon 29. So therefore solution क्या हो गया आपके पास? The value of x equals to 49 upon 29 and the value of y equals to 19 upon 29। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ये सही है या नहीं, तो इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करने के लिए क्या करेंगे हम? We are substituting the value of x and y in equation 1 and 2 और जो आपको राइट हैंड साइड दी हुई है एंड वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर राइट हैंड साइड। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे हम? वापस से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड मोर क्लियरली लेट अस कंसीडर इट इज स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप क्या दिया हुआ है? Find the value of one variable, say y in terms of other variable, that is x from either equation, whichever is convenient। जो भी आपको लगे कि ये हाँ यहाँ से केवल y की वैल्यू आ सकती है या x की वैल्यू, you are free to find any of the variable in terms of other variable। उसको कहाँ करना है? दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहां से पूरी इक्वेशन जो है किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उसको जो हमने पहले इक्वेशन कन्वर्ट की है x और y की टर्म में उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टेप 2 में जो दिया हुआ है एंड देन वी हैव टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये इसके प्रोसेस हैं, स्टेप हैं और रीसब्स्टिट्यूट करके हम उसको जो है वैल्यू को वेरिएबल को पुट करके हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। Now solve question 1 of exercise 3.1 by substitution method। अब जो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का उसको यहाँ कहा गया इस एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लेट अस s and t with the age of year of आफ्ताब and his daughter respectively। तो इक्वेशंस क्या बनी थी हमारे पास? वी आर गेटिंग these two equations, s equals to s minus 70 plus 42 equals to 0 और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? s minus 3t equals to 6। ये दो इक्वेशंस बनी थी हमारे पास। तो क्या करेंगे हम? किसी भी एक इक्वेशन से, तो इक्वेशन 2 से बहुत आसान है, हम इसकी वैल्यू, सो व्हाट अबाउट दी s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ से हम इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और कहाँ पुट करेंगे हम? वी हैव टू सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितना है? s माइनस 70। तो s की जगह क्या रखेंगे हम? 6 प्लस 3t and take it is minus of 70 plus 42 equals to 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो ये
t वेरिएबल के अंदर आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4t और प्लस 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 48 इक्वल्स टू 0, which will implying that minus of 4t is equals to this plus 48 to taking either side, that becomes minus of 48. Here it is minus to minus is cancel out and we are getting, this is implying that t is equals to 48 upon 4. तो इसको कट करेंगे, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1 and 4 2 जा 8. That means the value of t is equals to 12. So one of the variable we have to finding out the value of t. That means this is the age of Aftab's daughter. S and t be the age in year of Aftab. तो इसको आफ्ताब की एज को हम एस से डिनोट कर रहे हैं और उसकी डॉटर की एज जो है वो टी से डिनोट कर रहे हैं. अब टी की वैल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी हियर टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एस. सो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एस, सो इट कैन बी रिटन डाउन एस इज इक्वल्स टू 6 तो है ही हमारे पास, प्लस 3 into 12, t equals to 12, put t equals to 12, then it is equals to 6 plus 12 3 the 36, that is equals to add करेंगे ये कितना आ जाएगा 42. That means the variable s is equals to 42. तो हमारे पास हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको s, t इस तरीके से लिखेंगे and it is equals to, that means s refer to the age of Aftab, that is equals to s. तो उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 42 ईयर और उसकी डॉटर की एज कितनी है, डॉटर की एज है 12 ईयर. तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा जो कि आगे देखो इस तरीके से ये सॉल्व किया. हियर इट इज द आफ्ताब एंड हिज डॉटर एज इक्वल्स टू 12 and 42 ईयर ओल्ड रेस्पेक्टिवली. वेरीफाई करना है तो हम इन दोनों वैल्यूज को एस और टी को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी फाइंड द वेरिफिकेशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Now move on to the example 9. Let us consider example 2 in section 3.3. That is the cost of 2 pencil and 3 eraser is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स और इरेजर कितने हैं. तो वी हैव टू सपोज x जो है आपका पेंसिल को डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग बाय पेंसिल एंड y वेरिएबल इज डिनोटिंग फॉर इरेजर. तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, क्या है 2 pencils that means 2x plus 3 erasers 3y equals to कितने में मिल रहा है, ये 9 रुपीज में. तो ये 2x plus 3y equals to 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन दूसरा कंडीशन क्या है कि 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी 18 रुपीज है. तो 4x plus 6y equals to 18. दिस becomes the equation number 2. Now हम किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, दी फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की है. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसा लिखेंगे x इक्वल्स टू दिस इज 9, दिस प्लस 3y टेकिंग टू आइदर साइड, दिस बिकम्स माइनस 3y, ये 2x है. देन अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू we have to written down 9 minus 3y upon this 2 is to be divided here. So we are finding out here the value of x. Now this value of x is substituting, कहाँ substitute करेंगे हम, इस इक्वेशन में substitute कर देंगे. पहली से फाइंड आउट किया है और हम इसको दूसरी इक्वेशन में substitute करेंगे. तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए 4x plus 6y. तो यहाँ पर अब हमने रख दिया 4 and this is the value of x. 9 minus 3y upon 2, this is the value of x plus 6y equals to 18.
तो यहाँ इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4। फिर 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18। देन अगेन 2 इज मल्टीप्लाई 2 माइनस 3y, इट इज माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो देखो यहाँ से आपका 6y और 6y कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया हमारे पास, इट इज 18 इक्वल्स टू 18। दिस इज, दोनों साइड कैसी आ गई हमारे पास, बराबर आ गई। नाउ व्हाट conclusion we are getting from this statement is true for all value of y. However, we do not get a specific value of y. y की किसी भी वैल्यू के लिए सही है, बट स्पेसिफिक वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं मिल रही है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन दी स्पेसिफिक, जब x की वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम y की नहीं मिल रही है तो हम x की भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस सिचुएशन हैज अराइजन because both the given equation are same. Therefore, equation 1 and 2 have, इसके कितने solution होंगे, it has infinite many solution। और उसका जो graphical solution था उसमें भी क्या था, they are representing the same equation। एक ही लाइन के जो है ये दोनों pair of linear equation, they were representing the same line of equation। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल थर्ड है उसको डिस्कस किया गया है। विल द रेल क्रॉसेस ईच अदर, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 3। रेल की जो पटरियां होती हैं क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं क्या, अपोजिट साइड जो रेल्स होती हैं, दे विल नेवर क्रॉसेस। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म x plus 2y minus 4 equals to 0। This is equation number 1 and ये equation 1 हो गया। उसके बाद 2x plus 4y minus 12, this is our equation number 2। Now equation 1 से, from equation number 1 we can find out the value of x। तो x को हमने यहाँ रखा है और इस plus 2y और माइनस 4 को आइदर साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 2y हो जाएगा माइनस का 2y। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट किया तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2y, हियर इट इज 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12, रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं इसकी। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 4y और फिर क्या आ जाएगा आपके पास 4y और फिर ये हमारे पास माइनस 12। तो देखो आपको क्या, तो ये 4y और 4y कैंसिल हो गया तो कितना बचा हमारे पास, वी आर गेटिंग इट इज 8 माइनस 12, it is equals to 0, which is implying that minus 4 equals to 0। ये पॉसिबल है क्या, माइनस 4 और 0 इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। एज वी नो माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, दिस इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। देयरफॉर the equation do not have a common solution, so the two rails will not crosses each other। वो रेल्स होती हैं वो कैसे होती है, पैरेलल होती हैं, they are parallel to each other। इस तरीके से they are extending in both the direction endlessly। दोनों तरफ अगर इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो they will never meet anywhere। तो हमें इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। This is all about the substitution method। Now the exercise 3.3 is there, so you will advise to try to solve the problem from the exercise 3.3, and in the next class I will discuss the problems, how we can simplify the problems of exercise 3.3। This will be done in next class। This is all about from my side regarding
this topic, solution of algebraic equation by substitution method. Examples, all the type of examples I have discussed to you. Now, in the next class, we are going to simplifying the problem from exercise 3.3, which is based on substitution method. Till then, thank you. Thanks a lot to watching this video solution. Thank you. Thanks a lot.